Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, before starting our today lecture, I would like to ask a few questions. My first question is, what is chemical equation? A chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of symbols and formula. My second question is, student, what is balanced chemical equation? Dear student, a balanced chemical equation is one in which the number of atoms of each element is equal on both sides of chemical equation. My third question is, why we need to balance a chemical equation? Dear student, we need to balance a chemical equation, or a chemical equation is need to be balanced because according to Lavoisier law, mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. And in a chemical reaction, mass of reactant is always equal to the mass of product. My last question is, student, what is reactant and product in a chemical equation? The substances which combine with each other in a chemical equation is called reactants, while those substances which are produced as a result of chemical equation are called products. रिएक्शन को बेसिकली 4 बेसिक टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि इन 4 कैटेगराइज के अलावा भी आपके पास केमिकल रिएक्शन की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो आप आगे लेवल पे पढ़ लेंगे। वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको या सिंथेसिस रिएक्शन भी इसको कहते हैं, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको एक और नाम भी देते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट, chemical reaction can be categorized into 4 basic type. However, these type not cover all the type of chemical reaction. These types are addition reaction, decomposition reaction, single displacement reaction and double displacement reaction. So let's start the first type of chemical reaction, that is addition reaction. बच्चों, एडिशन रिएक्शन वर्ड एडिशन से आया है। एडिशन का मतलब दो या दो चीज़ों को कंबाइन करना है। ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर आपके पास एक प्रोडक्ट बनाएं, उस किस्म की रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। और बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है ये मोस्टली आपकी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन पाई जाती हैं। दुनिया की हर दूसरी तीसरी रिएक्शन आपके पास एडिशन रिएक्शन होती हैं। एडिशन रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपको यहाँ एक डायग्राम से बता रहा हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ए कोई रिएक्टेंट है, बी भी कोई रिएक्टेंट है। ए और बी दोनों कंबाइन होकर आपके पास एक प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी। तो इस किस्म की रिएक्शन जिसमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर आपके पास एक प्रोडक्ट बनाए, उस किस्म की रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। So these reaction occur when two or more substances react together to form one product.
These are relatively large in number. Addition reaction can be symbolically represented as A plus B will give us A plus B reactant will give us AB product. General example of addition reaction are: when sulfur combine with oxygen, it forms sulfur dioxide. Sulfur and oxygen are reactant of this reaction. Sulfur and oxygen two reactant combine together to form one product. This reaction is called addition reaction. Next one, iron when react with oxygen they form iron oxide. आयरन ऑक्साइड बना लेता है जब आयरन आपके पास ऑक्सीजन से मिलता है। ये भी आपके पास एडिशन रिएक्शन है। बच्चों, क्या ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस है? आप खुद इसको बैलेंस कर सकते हैं। मैंने अनबैलेंस जानबूझ के लिखी हुई है, आपने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पर कितने आयरन है? 1। यहाँ पर कितने आयरन है? 1। आयरन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 2 को 2 करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 2 आयरन 2 लगाना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन साथ में आयरन भी 2 हो गया। जब आयरन भी 2 हो गया तो मुझे यहाँ पर भी आयरन को बैलेंस करने के लिए भी 2 लगाना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर decomposition reaction. What is decomposition reaction? बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपके पास कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के दे। लेट सपोज आपके पास कोई भी एक रिएक्टेंट था ए बी टूट कर आपके पास ए बी बना रहे। ए बी कोई एक रिएक्टेंट था जो आपके पास ब्रेक होकर आपके पास ए प्लस बी कोई 2 प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें 1 रिएक्टेंट ब्रेक अप टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. What? Decomposition reaction. Decomposition reactions have one reactant which break up to form 2 or more product. Usually decomposition reaction are endothermic. बच्चों, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ये अमूमन आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ये एंडोथर्मिक एक्चुअली क्या होता है, ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंडोथर्मिक आगे वाले लेक्चर में, हमारा लास्ट लेक्चर इस यूनिट का इसके ऊपर होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के ऊपर। मैं जर्नली यहाँ ये बता देता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। बच्चों, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? आपको हीट रिक्वायर्ड होगी। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जर्नली जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो आपके पास यूजुअली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उनमें हीट रिक्वायर्ड होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन have one reactant which break up to form 2 or more product. Usually decomposition reaction are endothermic as they required heat. Decomposition reaction can be represented as A plus B is a reactant which form A plus B as a product. Common example of decomposition reaction of calcium carbonate. Calcium carbonate when heated, this is the symbol of heat. When heated it formed calcium oxide plus carbon dioxide. स्टूडेंट, क्या ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दैट इज बैलेंस। KClO3 पोटाशियम क्लोरेट व्हेन डिकम्पोज इट फॉर्म 2 पोटाशियम क्लोराइड प्लस 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 पोटाशियम आयन है। बच्चों, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। कैसे? यहाँ पे 1 पोटाशियम है, यहाँ पे 2 पोटाशियम आयन है, 2 पोटाशियम एटम्स हैं। तो पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ क्या लगाऊँ? 2 लगा दूँ। 2 लगा दिए तो मेरे पास पोटाशियम 2 हो गए। तो यहाँ पर क्लोरीन भी मेरे पास 2 हो गए,
यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हैं, 3 2 ज़ार 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 2 ज़ार 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 2 ज़ार 6 ऑक्सीजन हो गए। अब आपके पास ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो स्टूडेंट, आई होप आपको एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपके पास एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ले। मैं फिर से बता रहा हूँ, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव वन एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके पास एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लें, हटा दें किसी भी कंपाउंड में से, उस किस्म की रिएक्शन को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है A+B कोई भी एक कंपाउंड है। A+B इज वन ऑफ द कंपाउंड, C आपके पास कोई और एलिमेंट है। ये आपके पास हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये आपके पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बच्चों आपके पास क्या करते हैं, इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है। इसको डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद यहाँ पर लग जाता है। जब ये इसके साथ लगेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको डिस्प्लेस कर रहे और ख़ुद इसके साथ लग रहा है, तो मेरे पास येलो अकेले हो जाएगा और आपके पास ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें आपके पास कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ले कंपाउंड में से, उस किस्म की रिएक्शन को कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When a more reactive element displaces a less reactive element in a compound, then a reaction will be called सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, A+B कोई भी एक कंपाउंड है जिसको आपके पास हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके आपके पास A को अकेले छोड़ रहा है और ख़ुद इसके साथ कंबाइन हो रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल बच्चों, जिंक व्हेन कंबाइंड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बच्चों, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, जिंक तो बैलेंस है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो क्या बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, Cl2। तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से क्लोरीन 2 टाइम हो गए, क्लोरीन यहाँ भी बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 होंगे। तो अब ये मेरे पास बैलेंस हो गई। सेकंड एग्जांपल, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या स्टूडेंट ये रिएक्शन भी बैलेंस है? नहीं, ये तो नहीं बैलेंस। यहाँ 1 सोडियम है, यहाँ 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस 1 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर अगर 2 लगा लेता हूँ, 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ 2 3 हो गए, तो 3 और यहाँ 4। तो यहाँ भी 4 करने के लिए मैं यहाँ भी 2 लगा देता हूँ। 2 लगाने से हाइड्रोजन 4, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम एंड दैट शुड बी 2 सोडियम। अब ये मेरे पास बैलेंस हो गई। तो स्टूडेंट, सबसे लास्ट केमिकल रिएक्शन की टाइप दैट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, अगर आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाने में कोई इशू नहीं है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों आपके पास 2 आयन जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं, 2 आयन डिस्प्लेस होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन 2 कंपाउंड। 2 कंपाउंड के जो अपोजिट आयन होते हैं। अब आयन क्या होते हैं आपने पिछली क्लासेस 7 क्लास के अंदर पढ़ा होगा। जब आपके पास 2 डिफरेंट किस्म के आयन एक्सचेंज होते हैं तो उस किस्म की रिएक्शन को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको यहाँ डायग्राम से इजी समझ आ जाएगा। मेरे पास एक कंपाउंड है A+B और इधर भी कंपाउंड है C+D।
अब इसका ए जो है, ए क्या कर रहे, डी के साथ कंबाइन हो रहे और सी को रिप्लेस करवा रहे, यहाँ से हटा रहे। ए डी के साथ कंबाइन हो रहे और सी को यहाँ से हटा रहे, और बी जो है सी के साथ कंबाइन हो रहा है। इसका ये वाला आयन इसके साथ कंबाइन हो रहा है, इसका ये वाला आयन इसको के साथ कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब सिंपल ये है कि दो अपोजिट आयन जो हैं इनके आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके पास टू आयन डिस्प्लेस हो रहे हों, एट अ टाइम टू आयन एक्सचेंज हो रहे हों, तो उस किस्म की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखें, ए डी के साथ कंबाइन हुआ, ए डी के साथ, बी सी के साथ, बी सी के साथ, तो इस किस्म की रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज of ion between two compounds. General example of double displacement reaction of when HCl react with sodium hydroxide, it forms sodium chloride plus water. यहाँ भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये सोडियम जो है इसके साथ कंबाइन हो रहे और ये इसके साथ कंबाइन हो रहे, H2O NaCl, यहाँ ZnSO4 और CuO। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो इस किस्म की रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस डायग्राम। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। Main point of lecture. First main point of lecture is addition reaction. These reactions occur when two or more substances react to form one product. They are relatively large in number. Second important main point is decomposition reaction. Decomposition reaction have one reactant which break up to form two or more products. Third main point is single displacement reaction. Such type of chemical reaction occur when a more reactive element displaces a less reactive one from its compound, is called single displacement reaction. And fourth main point is double displacement reaction. Double displacement reaction involves the exchange of ion between two compounds. Double displacement reaction can be represented by given diagrams. Student, your homework is complete the following reaction and also name the type of chemical reaction. आपने इन रिएक्शन को बैलेंस करना है और कंप्लीट करने और बताना है कि इनमें कौन कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी एडिशन है, कौन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, इनके नाम भी लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिल एंड कंप्लीट द रिएक्शन इन एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसी रिएक्शन गिवन है जिनके कुछ प्रोडक्ट मिसिंग है, किन बास के रिएक्टेंट मिसिंग है, उनको आपने कंप्लीट करने और उनके आगे भी आपने उनके टाइप के नेम लिखने। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। आई होप अगर आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।